dignitaries and participants. The topic of webinar panel discussion is role and functioning COVID-19 and post-COVID times. And we are very fortunate today that today we have distinguished and eminent honorable judges as speakers. So before proceeding further, I'll just mention two things. One, that JTF GITO is just a platform. Both are charitable, social, and not-for-profit organization. And the views this program is done as an educative, informative, and knowledge-sharing initiative. So the views expressed by our dignitaries and esteemed speakers are personal and not in any official capacity. And second, the flow of the session would be that I'll be introducing and then asking few questions with each honorable speaker in a total 50 minutes, 10 minutes for each speaker, and then we can have a 20-25 minutes Q&A round where all participants can participate and ask questions. The participant can either raise their hand or they can send in the chat the questions to me, Harsh Surana, or to Sridhar. We can take questions from there. So to start our program, I'll request Shri Prithviraj Kothari ji, JTF Chairman, to give his welcome address and welcome all participants and dignitaries. Thank you, Harsh. सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं JTF की तरफ से सभी आदरणीय, सम्माननीय और माननीय हाईकोर्ट जज साहब को इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भी हमारे देश में जज साहब को भगवान की तरह मानते हैं। आज भी हमारे देश की न्याय प्रणाली पर हम सबको पूर्ण विश्वास है कि अगर हमें कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और हमें पूर्ण हर एक देशवासी को पूर्ण न्याय प्रणाली पर विश्वास है कि हमें कोर्ट से सही मार्गदर्शन मिलेगा और सही जजमेंट मिलेगा। और आज भी हमें पूर्ण विश्वास कोर्ट के माध्यम से रहता है। JTF जीतो एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रेनिंग फाउंडेशन जो जीतो का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। JTF के 218 डोनर और मेंटर की वजह से अभी तक UPSC और SPSC स्टेट लेवल और UPSC में अभी तक 167 UPSC में और 272 SPSC में ऑफिसर्स प्रशासनिक सेवा में आज की तारीख में कार्यरत है। मैं JTF की तरफ से एक बार सभी जज साहब का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं और उनकी हम राय जानेंगे कि देश में कोविड इस महामारी में क्या हो रहा है। एक्चुअल आपको इस वेबिनार से पता चलेगा कि देश में इस महामारी से कैसे लड़ रहे और क्या रहे। मैं एक बार तहे दिल से आप सबका इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ओवर टू हर्ष। Thank you, Kothari sir. We are also fortunate that we have GITO Apex Chairman Shri Pradeep Rathod ji with us. So I'll request Pradeep ji to say a few words and welcome all. Pradeep Rathod ji. Good evening, Jai Jinendra. I would definitely like to welcome all the honorable judges who have taken their valuable and time to participate in the webinar conducted by JTF. I would also like to thank Harsh Surana ji for conducting this whole and making it happen. I think so. The subject will definitely, a lot of eyes will be open. Yeah, what will the judicial system be after this COVID or within the period when the COVID is still there? And because there are going to be a lot of cases also in this time on different aspects. In at least in the business community, I am thinking even that will be an eye-opener, how it will be handled now. It will be a difficult time. And thank you, JTF, Prithviraj ji, JB Ganpat ji, all for this. I think so. It will be a really learning for participants.
Thank you, Pradeep ji. We also have today with us Jito Apex President Ganpat Chaudhary. I'll request Ganpat ji to welcome and share his views. Ganpat ji. Jai Jinendra. First of all, my heartiest compliment to Harsh Surana, JB Jain, and entire JTF team, including Prithviraj, our chairman. On behalf of Jito, as it is well aware, and most of the judges who are there on our panel today must be knowing, but I would like to say something about the Jito. Jito is a one organization who has brought all the Jain on one platform. And today, we are a proud family of more than 35,000 families are the direct indirect member of Jito. Jito doing lot of activity mainly for economic empowerment, education and Seva. Recently, I am really very happy because the subject is also COVID, what will happen after COVID in the courts and how it will function. In the COVID time, I am just for the information of all the judges that Jito has done a wonderful work. Jito and Jito's member has done more than 300 crore rupees worth of work for the COVID. A lot of members have contributed directly to PM Care, CM Care Fund around 265 crore, and more than 35 to 40 crore rupees Jito's member. The chapters they have collected and they have used for the various Seva Kiya project and for all mankind. We have taken care of more than 50 lakh people. We have served the food. We have sent 2 lakh more than grocery kit and lot of activity. So even in the lockdown time also, the Jito and Jain Samaj is always in the forefront of the Seva. Whenever any kind of a natural calamities comes in a country, Jain Samaj and Jito is always in the forefront, whether it is earthquake or flood or any kind of even Pulwama or wherever. So we got a good opportunity. So we have also tried to do whatever the best possible. Along with this social activity, of course, our focus and as Jito's main two verticals, Sarvan Arogyam and JATF, and today we are all meeting on a JATF platform. JATF is our flagship. We are all proud of JATF activity. And with the activity of JATF, we could make our more Jains comes in the civil services and 167 as recently informed by our chairman Prithviraj, and of course state level. But then our journey is on. We are still putting our best effort that how we can encourage more and more our community people to come forward to for the service, civil services in UPSC. Recently, the board took the decision that why only the civil services and why not judiciary, and that is why this judiciary service in JATF we have recently started. Harsh and JB Jain is putting best efforts. So on behalf of entire Jito, I welcome Vinitji Kothari, Honorable Justice Vinitji Kothari, Manishji Bhandari, Tater Saab, Honorable Justice KK Tater Saab, Sri Satishji Vora from our Ahmedabad, and Gautamji Choradia. On entire family of Jito, I welcome all of you in this panel, and I am sure with the availability of such a dignitaries and eminent personalities on the screen, all the members who have joined and who are listening on the Zoom and the Facebook and live, so they will get benefit of their views. So thank you once again, and I welcome all of you. Thank you, sir. Thank you, Harsh. Thank you, Ganpatji. Thanks a lot. To start our panel discussion, as our first speaker, I'll invite Honorable Justice Shri Vinit Kothari ji. He is the senior most judge at Madras High Court, Chennai. He was elevated to High Court in the year 2005, and apart from having degrees in law, LLB, LLM, and PhD in law, he is a chartered accountant and a qualified company secretary. Many of you know about this, but 3 professional degrees. And before, previously, he was the acting Chief Justice at Madras High Court. Previously, senior most judge at Karnataka High Court, and before that, he was a judge at Rajasthan High Court. It's my pleasure to invite you, sir, and to hear from you. So, as the topic, it is related the role and functioning of courts in these times. So, sir, my first question. There is an impression कि बहुत लोगों को सर अभी यही लग रहा है कि कोर्ट्स फंक्शनल नहीं है, वर्किंग नहीं है, but in reality
जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बहुत सारे जो अभी प्रेवलेंट सोशल इश्यूज हैं उनको टेकअप किया है और बहुत सारे डायरेक्टिव्स गवर्नमेंट को और दूसरी अथॉरिटीज को दिया है. तो सर, Madras High Court is also very active. So, sir, if you can share a few instances where Madras High Court has taken a proactive stand and catering to the grievances and needs of common man and common citizen. Honorable Justice Vineet Kothari, sir. थैंक यू सभी को. जय जिनेंद्र साहब, सभी से पहले सभी माननीय लोगों ने जिन्हें स्वागत किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद. डॉक्टर हर्ष, आपको भी बहुत धन्यवाद. सबसे पहले तो मैं होमेज पे करना चाहूँगा. हमारे प्रीवियस जीतो से जो प्रेसिडेंट रहे रणजीत जी चौधरी साहब, उनका हाल ही में इस सेवा करते हुए कार्यक्रम में ही डेथ हो गई. शायद वो कोरोना से भी इफेक्टेड थे और हार्ट की भी प्रॉब्लम उनको हो गई. वो चेन्नई में थे, इसलिए हमने प्रोमिनेंटली उस न्यूज़ को देखा सुना. उनको बहुत सारा होमेज. वी प्रे गॉड फॉर हिज पीस टू हिज नोबल सोल. और भी ऐसे कई कार्यकर्ता रहे होंगे जिनको बहुत एडवर्सली इफेक्ट होना पड़ा और बहुत अच्छा काम किया. जैन समाज हमेशा आगे रहता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है. और ये जो ऑर्गेनाइज आपने वेबिनार किया है, बहुत एक तरह से बर्निंग टॉपिक लिया है, बिकॉज जुडिशरी से जो एक्सपेक्टेशंस है वो हमेशा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से भी ज्यादा रहती है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से गार्जियंस कहलाते हैं. इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ द स्टेट. And therefore, our all 24 high courts, now 25 and Supreme Court and subordinate judiciary जो कि backbone है judiciary की, उससे हमेशा ये उम्मीद बहुत ज्यादा रहती है कि बुरे समय में, चाहे वो इंडिविजुअल बुरा समय हो चाहे समाज का बुरा समय हो, आगे आकर ना सिर्फ लीडरशिप देंगे बल्कि लोगों के राइट का, हेल्थ का, प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन भी देंगे. कोरोना टाइम्स में पिछले मार्च एंड से लगभग आज तक हम लोग सब बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं और कोर्ट्स के लिए काम करना भी लगभग एक तरह से वी हैड अ ग्रेट क्रिपलिंग इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ कोर्ट्स. बट थैंक्स टू अवर लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द सीनियर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आल्सो, who have from time to time modulated their policies of working, way of working, taking full support of the technology, online video conferencing and all this, have tried to keep pace with the justice dispensation even in these bad times. But the thing is, we can't deny this fact that the justice dispensation has also suffered a serious setback, and the working capacity and output has also gone down substantially. जहाँ तक वेरियस राइट्स के बारे में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का प्रोएक्टिव रोल रहा और वेरियस इश्यूज को टेकअप करने का रहा, यस, राइट फ्रॉम डे वन व्हेन वी स्टार्टेड देयर वाज ए सर्च ऑफ PIL petitions filed in our courts. Some of them I have also dealt with in Madras High Court, being a senior judge. Prominently हमने लिकर का केस डील किया था यहाँ पे, और as you all know, because of revenue reasons, the government wanted to restart the liquor shops during the COVID times itself. So firstly, we did not want to interfere because it was a matter of government policy. But the day it was opened, the crowd in the media showed that people are falling over each other and the norms of social distancing have been thrown to complete out of gear. तो हमने दूसरे तीसरे दिन ही वापस मैटर को वापस सुओ मोटो लिया और रेस्ट्रेन किया स्टेट को सारा कि आप ये कोई जस्मैक शॉप्स नहीं खोलेंगे, लिकर अभी नहीं बेचेंगे, बिकॉज 45 डेज से बंद था. तो लोगों की लाइन जो लगी जिस तरह से लिकर लेने के लिए, वो एक बहुत खराब माहौल कर दिया. और मद्रास में, चेन्नई में कोयम्बटूर वेजिटेबल मार्केट को उन्होंने कुछ हफ्ते भर पहले ही खोला था, तो वहां की क्राउड से भी एकदम हॉटस्पॉट बना वो एरिया और खूब सारा कोविड फैला. तो फिर हमने उसको पूरा रेस्ट्रेन किया. हालांकि हफ्ते भर बाद फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करके उसको वापस चालू किया और फिर हफ्ते बाद तो गवर्नमेंट ने सारा खोल भी दिया. में क्राउड्स भी रेगुलेट हो गई. डे वन से हॉस्पिटल के एडमिशंस हैं, चार्जिंग ऑफ फीस है, ये सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है वेरियस प्लेसेस. The day-to-day guidance which we took from the media and other sources about the
reasons and way to prevent the spread of corona, the courts have played very proactive and timely role, I would say, in trying to protect the health of the people at large in priority over the economy's interest, because we considered Article 21 to be of little superior nature than the business interest, and therefore various directions were issued from time to time on day-to-day basis by various benches of high courts and supreme courts. तो एक तरह से लोगों का जो एक्सपेक्टेशन और सहारा और जो उम्मीद थी कोर्ट से कि हमको एग्जीक्यूटिव के माल एडमिनिस्ट्रेशन से या नॉन एक्शन से या ओमिशन से अगर कोई बचा सकता है या कोई लीडरशिप और दे सकता है, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हालांकि गवर्नमेंट ने भी इस कठिन समय में बाय एंड लार्ज बहुत अच्छा काम किया है. Suddenly we have seen a very proactive role of the executive and governments in these times, and I think all these times what we have clapped for the corona warriors and the all these doctors, nurses and people like them, municipal workers etc., they have done a wonderful job. फिर भी कोर्ट्स का सप्लीमेंटल रोल जो भी रहा, सुपीरियर लीडरशिप का रोल जो रहा, वो बहुत ठीक रहा. सर एक्सेप्ट एक जो क्रिटिसिज्म कोर्ट्स को फेस करना पड़ा वो माइग्रेंट लेबर के मूवमेंट के बारे में, वो अवश्य कोर्ट ने शायद उम्मीद करी कि ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट्स विल स्टेप आउट इमीडिएटली टू प्रोवाइड assistance, transportation and help to these poor people by providing food, shelter and transport to these people who started walking way back home 500 kilometers to 3000 kilometers. तो ये बहुत एक दुख का विषय रहा, जिसको शायद थोड़ा प्रिवेंट किया जा सकता था और टाइमली और एक्शन अगर गवर्नमेंट का होता. और फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पे तुरंत कॉग्निजेंस लिया सुमोटो और एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस लिए. बहुत सारे एनजीओ, समाज के विंग्स, जीतो के भी काफी विंग्स आए होंगे आगे उसमें, और एक तरह से सिचुएशन अब काफी कंट्रोल में. अब तो समस्या मैं समझता हूँ उल्टी शुरू हो गई. अब उनको बुलाने के लिए एसी कोचेस और एसी बसेस और प्लेन के टिकट्स तक भेजे जा रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स को बुलाने. तो ये सब कुल समस्या मिला के जो है कोर्ट का रोल अच्छा रहा है. नोबडी कैन से कि कोविड टाइम्स में कोर्ट्स have failed the public at large or expectations of citizens. I think courts have played a very positive role. Thank you. Sir, new problems के साथ में new form of litigation and disputes भी आता है. Sir, being your expertise in tax law, corporate matters, अभी बहुत सारे sir dispute regarding payment of wages, regarding employment, regarding IBC, बहुत सारे ऐसे हैं. So what do you think sir कि बहुत एक नए तरह का litigation courts में आएगा, उसके बारे में आपके क्या थॉट? हाँ, ये इशू आपने अच्छा रेज किया हर्षी, और इसमें बहुत सारा डिबेट अभी होना बाकी है क्योंकि मैटर्स पेंडिंग है, इसलिए कोई ऑथोरिटेटिव ओपिनियन या कंसिडर्ड ओपिनियन अभी इस सिस्टम में मिलना मुश्किल है. पर फिर भी जो फोर्स मेजर क्लॉज जो है उस पर डिबेट काफी होना है और हो रहा है कि कोविड पीरियड को क्या हर किसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस या इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें, या रेंटल वेवर्स हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस है, पेमेंट ऑफ रेंट है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, सरफेसी एक्ट में या आईबीसी में क्या इसको किस तरह से इसका डिडक्शन दिया जाए, सेट ऑफ दिया जाए, डिले किया जाए, ये सब बातें हैं. इसमें कुछ रिलीफ तो गवर्नमेंट ने दिया है, नोटिफिकेशंस निकाल के डेफर किया, मॉरेटोरियम एक्सटेंड किया है, वो भी बात है. बट इस तरह का लिटिगेशन हाँ कोर्ट में आना शुरू हो गया. मेरे खुद की बेंच में सरफेसी के 2-3 मैटर्स आए जिनकी ऑक्शंस ऑफ प्रॉपर्टी इस कोविड पीरियड में होनी थी. तो उन्होंने यही कहा साहब अभी स्थिति बिजनेस संभालने के लिए हम पैसा कहाँ से इकट्ठा करें, कहाँ से लाएं, कहाँ से दें, तो इस पीरियड को थोड़ा अगर सस्पेंड रखें और सिंपैथेटिक व्यू अगर बैंक्स और वो लें तो ज्यादा बेहतर होगा. तो उनको हमने टेम्पररी रिलीफ दिया. जैसा आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ही कॉग्निजेंस लिया है कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स और एनसीएलटी और एनसीएलटी भी काम नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से. तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉज टेकअप किया है कि भाई ये इस सारे इश्यू पे आप बताइए गवर्नमेंट कैसे, हाउ डज इट वांट टू फंक्शन, एंड वेदर दीज बिजनेस रिक्वायरमेंट्स. Kotak Bank had approached the Supreme Court, so they are also taking up the issue
तो इस तरह का लिटिगेशन डेफिनेटली आना है। एक बात मैं कहना चाहूंगा इस यहाँ पे कि हम टेक्नोलॉजी की सपोर्ट से हालांकि वर्चुअल मीटिंग्स और वीडियो मीटिंग्स और ऑनलाइन मीटिंग्स करके काफी हद तक इस चैलेंज को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, but I should frankly admit that it is not 100% effective substitute of the open code working or normal code working. This can only be supplement, this cannot be a substitute for the open code working. तो इस हद तक जो लॉयर्स की भी डिमांड एक लार्ज सेक्शन की ओपन कोर्ट खोलिए, तो सिर्फ कोविड के और कोरोना के फैलने के डर से जो हम अभी फिलहाल रिस्क में नहीं कर सकते लॉयर्स को और स्टाफ को, इसलिए ज्यादातर कोर्ट्स अभी ऑनलाइन और वीडियो से काम कर रहे हैं। तो पर जब भी संभव होगा तो ज्यादा से ज्यादा कोर्ट फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल कोर्ट वर्किंग में जाना पड़ेगा। पर्टिकुलरली ये समस्या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में ज्यादा आ रही है। वहां के लॉयर्स और लिटिगेंट्स को हम इतना टेक सेवी नहीं मान सकते कि वो अपने स्मार्टफोन से सारी मीटिंग्स को, लाइसेंस मीटिंग्स, कोई वेबएक्स यूज करता है, कोई पॉलीकैम यूज करता है, कोई जूम यूज करता है। एज यू नो गवर्नमेंट ने जूम को एनकरेज नहीं किया है, हालांकि हम खुद यूएस लाइसेंस के जूम पे मीटिंग ये कर रहे हैं, पर चाइना के इफेक्ट से कुछ ये भी डर था कि शायद सिक्योरिटी रीजंस हो, तो वो भी एक इशू है। और जहां तक हमने काम किया पिछले 3 महीनों में, मेरा छोटा एक्सपीरियंस है, सब्जेक्ट टू व्हाट अदर लर्नेड ब्रदर्स फ्रॉम देयर आई विल शेयर, इट हैज बीन लिटिल लेस देन 100% इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट। तो ये काम की जो आउटपुट की रेट है वो डेफिनेटली बहुत घट गई है, और एक ब्रॉड एस्टिमेट अगर हम करें तो मेरे ख्याल से हम 5 या 10% से ज्यादा होल ऑफ द वर्क जो हमें नॉर्मल कोर्स में करना होता है। अदरवाइज यू नो आप जजेस आर ओवरवर्क्ड लॉट इन इंडिया, राइट फ्रॉम मुंसिफ टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो अभी हम लोग काम इतना इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे। नए लिटिगेशन आएंगे, नए तरीके आएंगे, काम की प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज होंगी, पर जनता को जवाब हमें ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए इसको सप्लीमेंट के तौर पे अगर हम यूज करेंगे टेक्नोलॉजी, नॉट एज 100% सब्स्टिट्यूट, तो शायद ज्यादा बेहतर। जी सर, इंडिया में सर जुडिशरी, कोर्ट्स और जजेस पे बहुत फेथ है, और जहाँ सर फेथ होता है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होते हैं। तो सर जजेस को ऑनरेबल, लॉर्डशिप बुलाया जाता है, भगवान का दर्जा है। तो बहुत सर एक सेक्शन है जो ये मानता है कि इस टाइम में बहुत कुछ होना चाहिए था, और कुछ चीजें, एक माइग्रेंट लेबर का इशू है या कुछ है कि जहाँ पे कोर्ट्स का और प्रोएक्टिव रोल हो सकता था। तो सर उसके बारे में योर व्यूज। आपका कहना सही है हर्षी। कुछ लेवल्स में आपने देखा होगा माइग्रेंट लेबर की वर्कर्स को भी 5-6 हाई कोर्ट्स ने पहले प्रायोरिटी में टेकअप कर लिया, इंक्लूडिंग मैड्रास हाई कोर्ट। माय कलीग जजेस टुक अप द इशू फर्स्ट अबाउट दिस माइग्रेंट लेबर, और फिर दूसरा हाई कोर्ट ने लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस सेकंड राउंड में इसको टेकअप किया है। और जो भी ये इश्यूज आ रहे हैं जहाँ लोगों के एक्सपेक्टेशन, आपने सही कहा, बहुत ज्यादा हाई है, तो कोर्ट्स उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करने का भरसक प्रयास करता है, इसमें कोई शक नहीं। और कोर्ट ऐसी पिटीशन, सारी पिटीशन जिसमें अच्छा जेन्युइन पब्लिक कॉज रेज किया जाता है पीआईएल पिटीशन द्वारा, उनको टेकअप अवश्य करता है। हम इस दौरान, इस पीरियड में कोई भी पीआईएल पिटीशन जो बोनाफाइड होती है उसको हमने थ्रो आउट नहीं किया है। हमेशा स्टेट से सवाल का जवाब मांगा है, उससे उनको काउंटर या रिप्लाई देने का नोटिस दिया है, उनको समय दिया थोड़ा, और फिर अपनी तरफ से, अपनी बुद्धि से जो भी अच्छे डायरेक्शंस या प्रॉपर डायरेक्शंस हो सकते हैं वो देकर से स्टेट से कंप्लायंस भी ली। तो फिर भी मैं समझता हूँ एक्सपेक्टेशन अगर 100 है तो फुलफिलमेंट शायद 100 अभी नहीं है, और ये एक्सपेक्टेशन भगवान बनाए रखे, क्योंकि जुडिशरी की इज्जत इस एक्सपेक्टेशन के पीछे ही बढ़ती है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एक्सपेक्टेशन खूब हो, litigation is welcome, but delivery is subject to various constants, as you know. The very size of infrastructure, the number of judges, the number of staff, the number of system which helps us is much short than what is the level of expectation or the level of institution of cases. Therefore, ये gap भी थोड़ा बना रहेगा, but expectation is welcome and we try to do our best. That is what we can promise and we are trying to do. जी सर। सर आज हमारे साथ काफी यंग प्रोफेशनल्स भी
जुड़े हुए हैं, जो कि सर टेक्नोलॉजी में काफी उनका एडवांटेज है। तो सर एक ऑनलाइन मीडिएशन, एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और एक ऑनलाइन सेटलमेंट, ऑनलाइन आर्बिट्रेशन, तो उसके बारे में सर आपके क्या व्यूज हैं? मैं तमिलनाडु में मीडिएशन का इंचार्ज भी हूँ, इसलिए ये मेरी जिम्मेवारी भी है कि आपको इस बारे में बताऊं। और हम लोग ऑनलाइन मीडिएशन अभी तक शुरू नहीं कर पाए हैं, हमने रूल्स बनाए हैं, फ्रेम किए हैं, और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से भी हम यूनिफॉर्म गाइडलाइंस की वेट कर रहे हैं। उसके लिए हमारी ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, और अतिशीघ्र, क्योंकि फैमिली मैटर्स में है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में है, इसकी ऑनलाइन मीडिएशंस, और काफी दिनों से वेट कर रहे थे, वो 3 महीने से एक तरह से ब्रेक लग गया था उसमें, और हम समझते हैं हफ्ते 10 दिन में इस कार्य को हम पूरा शुरू कर देंगे। एंड हमारा मीडिएटर्स का पैनल रेडी है, वो सब लोग भी ऑनलाइन टेक सेवी हैं, इतने की आराम से मीटिंग ज्वाइन कर सकें। पर कुछ इश्यूज हैं, जैसे प्राइवेट मीटिंग्स हैं, जॉइंट सेशंस हैं, वो है, नेगोशिएशंस की बात है, तो जो एक पर्सनल मीटिंग में बात आती है वो ऑनलाइन मीटिंग में टेक्नोलॉजी की हेल्प से लाई जा सकती है, पर उसकी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तैयार किए जाएंगे, और वो ट्रेनिंग दे करके मीडिएटर्स को और पार्टीज को भी थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा। और उसके साथ ही हम बहुत शीघ्र, मैं समझता हूँ, नासा की गाइडलाइंस के साथ ये सारे स्टेट्स में ये काम को बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा, ताकि एडीआर सिस्टम जो है हमारे कोर्ट्स का, वो भी इक्वली इफेक्टिवली काम कर सके, बहुत जल्दी हो जाए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। As our next, जी sir. As our next speaker, we have Honorable Justice Manish Bhandari Saab with us, Judge Allahabad High Court, Lucknow bench, and previously Judge Rajasthan High Court at Jaipur. Bhandari Saab was a very successful lawyer before joining judiciary in the year 2007, and in his advocacy days, he had led the Rajasthan High Court Bar Association as well as the Bar Council of Rajasthan. So it is a pleasure to have Honorable Justice Manish Bhandari Saab. I welcome you, sir. Thank you. Sir, Thank you, Harsh. Right, sir. Sir, from last 1 month, COVID-19 coronavirus को लेके सर कि अब एक ये न्यू नॉर्मल है, और इससे सबको एडजस्ट करना पड़ेगा, सारी जितनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं। तो सर इसमें जो एक फिजिकल कोर्ट हियरिंग जो कि एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, तो सर वो आप किस तरीके से, द न्यू नॉर्मल राइट नाउ सर, कुछ इनिशिएटिव्स ऑनलाइन हियरिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहे हैं, मगर जो फिजिकल हियरिंग्स हैं उसका क्या सब्स्टिट्यूट, एंड व्हाट इज द न्यू नॉर्मल फॉर कोर्ट्स एंड जुडिशरी? योर व्यूज ऑन दिस सर। Harsh, thank you for inviting me in this meeting. मैं बधाई करना चाहूँगा organizers को to arrange for the meeting and to discuss the relevant issue, which is very relevant. COVID-19 क्या कोर्ट में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी सबको मिले, उसकी आवश्यकता यहाँ पे है। बिकॉज जैसे एक पहला प्रश्न आपने जस्टिस कोठारी से पूछा कि लोगों की फीलिंग है कोर्ट इज नॉट वर्किंग, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आर नॉट वर्किंग, तो उन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि नो, द कोर्ट्स आर वर्किंग, मे बी नॉट फिजिकली, वर्चुअल हियरिंग कर रहे हैं। कोविड का आपने जैसा बताया कि इट इज गोइंग टू बी इन आवर लाइफ, अगर ऐसा होता है, अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट, बट जैसा लग रहा है कि ये शायद हमारे साथ रहे, तो बहुत सारे चुनौतियां, बहुत सारे चैलेंजेस उसमें होंगे, एंड वी हैव टू कम आउट विद दीज डिफिकल्टीज। अभी कोर्ट वर्चुअल चल रहा है, तो जस्टिस कोठारी साहब ने जैसा बताया कि देयर आर मेनी डिफिकल्टीज इन दैट, लेकिन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो रहे हैं और होंगे, तो इफेक्टिवली वर्किंग होगी। बट आई पर्सनली से कि फिजिकल हियरिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कोई। द रीजन इज वेरी वेरी क्लियर, द courts are having very limited time. I mean, within few minutes you have to judge the case and you have to deliver also. उसमें आई कॉन्टैक्ट विद द लॉयर एंड फिजिकल अपीयरेंस और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिससे आप सेंस कर सकते हैं कि व्हाट इज देयर इन द केस। इट इज, आई मीन, तो ऐसी स्थिति में कोविड-19 के साथ फिजिकल वर्किंग करना आवश्यक भी है, लेकिन चुनौती भी है। जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है, सोशल डिस्टेंसिंग करके
और कार्य करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी जैसे लखनऊ बेंच का मैं कहूँ तो इट इज सेंट्रली एयर कंडीशनिंग विदाउट वेंटिलेशन भी ऑपरेट करना मुश्किल काम है, परंतु कोशिश कर रहे हैं कि जितने केसेस अगर लग रहे हैं उनके लॉयर्स को ही केवल एंट्री दें, और कोर्ट रूम में इट हैज टू बी बाय स्ट्रिक्टली बाय नंबर, जो एडवोकेट्स वहाँ अवेलेबल हैं उन्हीं को अपीयर होने की इजाजत दी। ये कोशिश है कि डिस्टेंसिंग रहते हुए भी हम काम कर लें। प्रैक्टिकल कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, बट वी विल कम आउट विद दैट ग्रेजुअली। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके साथ उसका सोल्यूशन भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई एम क्वाइट होपफुल कि इस फेज को, बहुत सारे पहले भी वायरस आए वगैरह, उसको हमने विन ओवर किया है, तो इसमें भी हम निकल के आएंगे बाहर। सर, आप एक अभी इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश को लीड कर रहे हैं, एंड सर पेंडेंसी एक ऐसा इशू है कि वो हमेशा इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में डिस्कस होता है और बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। और अभी सर कोविड की वजह से काफ़ी जुडिशियल डेज लॉस्ट हुए हैं, तो सर ये किस तरीके से पेंडेंसी को कोर्ट्स डील करेगा सर? ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा आपने हर्ष। आई मीन पेंडेंसी is a big challenge to the court. I mean everywhere. It is not only Allahabad. Allahabad is having huge pendency. It is around 10 lakh cases at Allahabad and Lucknow. और 2-3 महीने की जो वर्किंग कम हुई है या खराब हुई है, that is again a challenge, क्योंकि उससे पेंडेंसी और बढ़ी है, या जो डिस्पोजल इस टाइम में होता। The only thing is we have to work hard. कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता वर्क हार्ड करने का, क्योंकि पेंडेंसी हरदम रही है, रहेगी, परंतु हम जितना एक्सपीडाइट कर सकते हैं अपने प्रोसीडिंग को, वी हैव टू ट्राई इट। एंड वन मोर थिंग, द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, लाइक इलाहाबाद हाई कोर्ट, वी हैव कैपेसिटी ऑफ 160 जजेस, सैंक्शन स्ट्रेंथ है। प्रेजेंटली वी हैव वेरी गुड स्ट्रेंथ, बट इट इज नियरली 100, सो -60 जजेस, आई मीन यू कैन इमेजिन कि कितना हम लॉस उस चीज का कर रहे हैं। These are few issues which comes along with the issue of pendency. बहुत सारे, अगर स्ट्रेंथ देखा जाए और पेंडेंसी के हिसाब से देखा जाए, it should be more than 200 judges for Allahabad High Court itself. तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोविड के कारण से ही हम बहुत सेटबैक में हैं। We will face this situation and थोड़ा सा हमको काम ज्यादा करना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि उसको एक्सपीडाइट करके we should come out with the pendency issue also. Though I mean it is really setback COVID के कारण से, but कोई इलाज भी नहीं था, there was no alternate for that also. सर जो मैंने क्वेश्चन कोठारी साहब से पूछा था कि इंडिया में जुडिशरी में बहुत फेथ है और फेथ के साथ में एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, सो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि जहां कॉमन मैन को लगता है कि कोर्ट्स और स्पेशली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिव और ज़्यादा हो सकते थे, बट सर देयर इज ए कि गवर्नमेंट का कुछ रोल है पॉलिसी मेकिंग में और इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस को टेकअप करने के लिए, मगर एक कॉमन मैन को लगता है कि नहीं हर काम कोर्ट कर सकता है, तो सर इसमें किस तरह से बैलेंस होना चाहिए और आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, इसमें मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँगा। I mean, court cannot take over the administration part. Court should have its own limitation. Administration में interfere तभी करना चाहिए जब बहुत आवश्यक हो. Otherwise, the administration is the best suitable judge to know the situation to handle it. Court में कई बार हम आदेश तो कर देते हैं, परंतु रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं होता है या आ नहीं पाती सामने, तो उसके इल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं. But at the same time, court need to be proactive on the issues which are not being handled properly by the administration. Administration का बहुत failure हो जाता है, mal practices भी आ जाती हैं, and many other things. So we need to be sensitive to the issue. जब common person का मामला आता है, and public interest litigation is such a field where we need to address all those issues. तो मैं अगर conservative होते हुए भी कहूँगा कि जहाँ आवश्यकता है, जहाँ इमरजेंसी है, जो अति जरूरी चीजें हैं, उसको करना है तो कोर्ट शुड टेक लीड. और इसमें जैसे जस्टिस कोठारी साहब ने बताया, इज नॉट ओनली मद्रास हाई कोर्ट, जैसे कोठारी साहब का खुद का ही लिकर पे ऑर्डर था, ही हैड सेंट द ऑर्डर आल्सो. इसी ढंग से कोर्ट काफी ऑर्डर्स पास कर रही है जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है,
जहां वो मीट विद द सिचुएशन को नहीं कर पा रही है, परंतु जनता का ये सोचना कि सारी चीजें कोर्ट करेंगी, that would be too much. I mean, we have regular burden of the cases and PIL would be additional burden. So to balance the things, हमको थोड़ा सा ध्यान रख के कार्य करना चाहिए, हर चीज में इंटरफेयर करना उचित नहीं होगा. This is my perception. जी सर. Sir, आज काफी young lawyers and professionals are also there. You being a very successful lawyer, लेकिन आपने जुडिशरी को चूज किया, तो सर इन यंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या मैसेज की why to become a judge, और जज बन के कैसा फीलिंग, तो वो कुछ आप पर्सनल फीलिंग शेयर करें. ये is very very difficult question, Harsh. I mean, it's a personal also. देखिए, जब आप प्रोफेशन में होते हैं तो आप हरदम इच्छा रखते हैं कि मैं हाइट पे जाऊं. That is the height is to become a judge of the High Court. That is the one. परंतु रिट्रोस्पेक्ट में जब हम सोचते हैं तो पता चलता है कि it's not that easy to remain in the in this side also. पर young lawyers का मैं कहूँगा कि they need to work hard. First thing is hard working का कोई substitute नहीं है. उनका aim होना चाहिए to remain successful in the profession. Rest is destiny. ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जज नहीं बने तो you are not successful. You may be successful. बहुत सारे senior lawyers आपके साथ काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में. उनको अगर ऑफर भी होगा तो जजशिप उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी है. तो अभी बहुत जो सक्सेसफुल लॉयर्स हैं, they are not accepting the judgeship for various reasons, and maybe economy is one of the reason. Though my perception is कि अच्छे lawyers को आगे आना चाहिए, उनको जुडिशरी को ज्वाइन करना चाहिए, because institution की स्ट्रेंथ जब भी होगी जब अच्छे लोग इस साइड आएंगे. So I wish कि young lawyers को हार्ड वर्किंग के साथ एक टारगेट करके अगर मौका मिले तो जरूर से जुडिशियल साइड में आना चाहिए, जज बनना चाहिए. थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट सर. It's my pleasure. Right, sir. As our next speaker, we have Honorable Justice K.K. Tater Saab, Judge, Bombay High Court, Mumbai. Tater Saab was elevated as High Court Judge in the year 2008, and as advocate, he has taken up many important social causes and issues. And now, as a judge, he has delivered many landmark judgments where the common man and society has benefited. So I welcome you, sir. सर, my first question कि सर अभी टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है और कि सब कुछ डिजिटल हो. काफ़ी इनिशिएटिव इस कोविड से पहले भी लिए गए सर, मगर अभी डिजिटाइजेशन और डिजिटल वर्ल्ड के बारे में पिछले लास्ट 2 महीने में बहुत कुछ वर्क हुआ है. बट सर द रियल पिक्चर इज कि आज जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, आज आप बीइंग ए हाई कोर्ट जज, बहुत सारे सबऑर्डिनेटरी जुडिशरी और जजेस और कोर्ट्स आपके अंडर में आते हैं. तो सर वहाँ की जो सिचुएशन है, रियल टाइम सिचुएशन, वो इतनी अच्छी नहीं है. वहाँ पे स्टाफ ट्रेन नहीं है, डिजिटल फैसिलिटीज नहीं है. तो सर हाउ डू यू परसीव कि जो ग्राउंड लेवल पे सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है? पहले तो सब जजेस ब्रदर्स को नमस्कार. जय जिनेंद्र. जीतो के ऑफिस बेयरर्स को जय जिनेंद्र साहब. आज का टॉपिक है अपना कोरोना. जैसे आपने सुराना जी आपने पूछा है कि लोअर जुडिशरी के अंदर टेक्नोलॉजी का सवाल है. अब ये क्या होगा, टेक्नोलॉजी के लिए तो अपन पहले से काम कर रहे थे, पर ये सडनली जो कोविड-19 का आ गया है उसके अंदर टू मेक अरेंजमेंट इन ईच एंड एवरी कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस, everybody is trying, but it is very difficulties are going on. क्योंकि आज देखिए आप तालुका प्लेसेस में नेटवर्क प्रॉब्लम इज कमिंग. काफी जगह तो इंटरनेट काम नहीं करता है. काफी जगह अब इंटरनेट काम नहीं करे तो वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू वर्क. इतना ही नहीं, जैसे आपने कहा कि टेक्नीशियंस, टेक्निकल पर्सन्स, अभी तो जैसे महाराष्ट्र में देखा हमने काफी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर फैसिलिटी दी हुई है इसके लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए. और मोस्टली दे आर यूजिंग इन क्रिमिनल मैटर्स, जैसे कि जेल से एक्यूज को लाना नहीं पड़े उनको, उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनका हो जाए अपीयरेंस और ये सब हो. पर ये तो बात सही है कि टेक्नोलॉजी के लिए इसको डेवलप करना ही पड़ेगा. इतना ही नहीं, इवन इन हाईकोर्ट के अंदर हम देखते हैं अभी जैसे कि प्लीडिंग्स आप सबमिट करते हैं बार के थ्रू,
काफी बार ये होता है कि पेजिनेशन जो बोला जाता है एट द टाइम ऑफ हियरिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट दैट वन, क्योंकि काफी बार होता है ऐसा कि जो अपलोड किया हुआ है कोई पीडीएफ में अपलोड करता है, कोई और काय में अपलोड करता है, और काफी घंटे में खुलता भी नहीं है। तो इसके लिए रूल्स आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द हाई कोर्ट्स दैट यू हैव टू अपलोड ऑन पीडीएफ ओनली, पर्टिकुलर पेपर बनाना है, ये सब चीजें चालू है। पर कितना भी करो आखिरी में तो भी आज के तारीख में देखे जाओ तो 10 to 15% वर्क इज गोइंग ऑन इन लोअर जुडिशरी आल्सो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जी सर। सर, आप एक बॉम्बे इज कंसिडर्ड टू बी द फाइनेंशियल कैपिटल एंड सर न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में बहुत सारे न्यू केसेस और लिटिगेशन। सर, व्हाट आर योर व्यूज कि ये कुछ अलग कमर्शियल डिस्प्यूट्स कोविड-19 के बाद इंक्रीज होंगे? ये तो बात सही है आपकी कि कमर्शियल सिटी है यहाँ पे बॉम्बे में, कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी कोई छोटे नहीं है। कोई सादा भी केस ले लो तो 10-20 करोड़ की कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी इस 2.5-3 महीने में देखा मैंने काफी केसेस, कमर्शियल केसेस आ रहे हैं। मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर फाइलिंग केसेस फॉर रियलाइजिंग देयर बैंक गारंटीज, other things to recover their monies. अब सवाल ये आता है कि अदर साइड those are coming, they say that because of this कोडिफा इसके लिए it will be difficult for them to repay also. We have to see both we have to keep balance in both the matters. जैसे financial institution, they are required to realize their dues. Other things are there, how they can pay. तो आज के तारीख में 2.5-3 महीने से पूरा बिजनेस ठप है, कोई ट्रांजैक्शन चालू नहीं है, तो लिक्विडिटी कहाँ से आवे? इसके लिए अभी फिलहाल जो हमारे यहाँ बॉम्बे में, जैसे अभी फिलहाल वी आर फंक्शनिंग ट्वाइस ए वीक, 2 बेंचेस रहते हैं, डिवीजन बेंच, और 3 जजेस आर सिटिंग सिंगली। तो काफी मैटर्स मोस्टली कमर्शियल ट्रांजैक्शन के आते हैं। तो वी हैव टू कीप बैलेंस इन बोथ द मैटर्स। हो सकता है फाइनेंशियल इश्यू आल्सो रिक्वायर्ड टू रिकवर देयर अमाउंट्स, whereas other side we have to see that businessman how will repay the amount. तो इतना ही नहीं, इसके बाद में अगर कोर्ट भी खुले तो मोस्टली लिटिगेशन तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन काफी आना ही है वो तो। जी सर। सर, ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स के सर, पैंडेमिक, लॉकडाउन, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो सर इसके बाद में एक ऐसा परसेप्शन है कि सर कोर्ट्स विल बी फ्लडेड विथ लिटिगेशन। सो आर सर कोर्ट्स equipped, well equipped and ready to handle this influx? सी आज के तारीख में ऐसा है कि वी हैव टू सजेस्ट मोस्टली ऑल्टरनेट रेमेडीज, जैसे कंसिलेशन है, मेडिएशन है, आर्बिट्रेशन है। कोर्ट तो फंक्शनिंग है और जैसा फ्लडेड होना है वो तो होना ही है, सवाल नहीं, क्योंकि आज के तारीख में पिछले 3 महीने से पूरे लिटिगेशन जैसे कोई पेंडिंग है, तो ओनली अर्जेंट मैटर्स वी आर टेकिंग एंड आल्सो मोस्ट अर्जेंट मैटर्स। तो इससे बेस्ट वे है कि ऑल्टरनेट रेमेडीज वी हैव टू फॉलो। आर्बिट्रेशन के अंदर भी काफी दैट कैन बी डन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, that can be solved. Mediation is there, but for that purpose we have to explain the public at large. आज सवाल क्या आता है, लेने वाला सोचता है कि मेरा मैटर इमीडिएटली कोर्ट में लग जाए, देने वाला सोचता है मैं जब तक इसको प्रोलॉन्ग करूं वो बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर से we have to take out way out, and for that purpose अगर आज का ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन देखे जाओ तो बेस्ट वे इज alter this alternate remedies as arbitration, mediation and conciliation. जी सर। सर, योर मैसेज टू द यंग प्रोफेशनल्स कि यू आल्सो सर एक बहुत सक्सेसफुल प्रैक्टिस को छोड़ के आपने जजशिप ज्वाइन की, तो सर यंगस्टर्स को जज क्यों बनना चाहिए और आपके क्या इस पे सर व्यूज हैं? देखो ऐसा है, प्रैक्टिस में रहो, सक्सेसफुल एडवोकेट, डेफिनेटली यू कैन अर्न एनीथिंग, देयर इज नो लिमिट फॉर अर्निंग, बट इन लाइफ एवरीथिंग इज नॉट अ मनी। एज ए जज यू कैन डू सोशल वर्क। कोई आदमी आपके पास आता है उनके प्रॉब्लम के लिए, यू कैन प्रोवाइड देम इमीडिएटली जस्टिस, और ये जो जस्टिस आप प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए जज, वो एज ए एडवोकेट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। दूसरी बात ये है कि स्टेटस, आज एक आप जजशिप एक्सेप्ट कर लो है, एक आपका अलग स्टेटस बन जाता है समाज के अंदर, एक जज है, एक न्यायमूर्ति है। और ये चीज है कि आप एडवोकेट बोल के आप काम करते हो, definitely you are giving justice to your clients, but as a judge for entire society you are doing. Therefore I feel that it is better
to join as a judiciary. और आज की तारीख में आप देखे जाओ तो सर्विस कंडीशन is very good. Pay scale is also very good. You are provided all the facilities by the government. And सबसे बड़ी बात है you are independent. किसका burden नहीं आपके ऊपर, कुछ नहीं. You can do your justice within the four corners of law. Therefore, best way for a young generation to join a judiciary, I feel. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. As our next speaker, we have Honorable Justice S.H. Vora Sahab, Judge, Gujarat High Court, Ahmedabad. Vora Sahab joined judiciary in the year 1997, and he was elevated to the Gujarat High Court in the year 2012. He has a rich experience of subordinate judiciary, where the actual civil criminal trial goes, and of the High Court, where the writ jurisdiction and fundamental rights all are there. So I welcome you, sir. Thank you. सर, एक कोविड-19 सर एक न्यू नॉर्मल बना है, और एक दूसरा सर एक है कि न्यू एडिशन सभी के लाइफ में हुआ है, दैट इज द टेक्नोलॉजी. अभी तक हम बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी में कॉमन यूज में कर रहे थे, मगर अब एक तरह से सब्स्टिट्यूट की आज हम मीटिंग भी कर रहे हैं तो एक हॉल में या किसी होटल में नहीं करके ऑनलाइन हियरिंग कर रहे हैं. तो टेक्नोलॉजी हैज बिकम ए पार्ट, दैट इज आल्सो ए न्यू नॉर्मल. तो सर, कोर्ट्स में टेक्नोलॉजी एज ए ऑनरेबल हाई कोर्ट जज एट गुजरात, कोर्ट्स में किस तरीके से सर इस टेक्नोलॉजी न्यू नॉर्मल को अडेप्ट किया जाएगा, इसके बारे में सर आपके कुछ व्यूज. Yes, pranam to all my brother judges and all the participants. Congratulations to the organizer of this program. The program is very important in today's time. Basic issue is about the use of technology in the functioning of the court. It is not a solution, or rather permanent solution to the future litigation which are going to come before the court. We are not so well equipped, as Justice Kothari Sahab said. It can be supplementary but cannot be substituted for physical hearing. Before I take this issue further, so far role and functioning of courts are concerned, in this unusual and unexpected situation, when justice delivery system is already overburdened, the system has been left to decide its own effective and efficient course of action to deal with the litigation that will come to the court for its adjudication. So I will not much talk about either physical or virtual court, because it has its own limitation and challenges. But the serious and burning issue is how to deal with the potential litigation on return of normalcy. I'm sure that creating of next generation delivery platform will take its own time on one hand, and it will not be without challenges, including challenge of coordination at different levels of government. So I don't think that anyone can afford to wait till creation of next generation delivery justice platform. One should not forget that present justice delivery system is incapable of bearing additional load of litigation. And for that, we may not look at each other for search of the reasons after return of normalcy, because the reasons are known to us. Before I talk about the use of the technology and how we will deal with the additional load, every one of us expects a variety of litigation to arise after post-lockdown period, namely under bankruptcy laws, SARFAESI Act, joint venture, check bouncing, contract act, rent act, matrimonial dispute, labor law dispute, medical negligence, education, insurance, and so on. At this stage, it needs to be kept in mind that disputes prevalent before the court pre-lockdown period
were based on variety of cause of actions, whereas litigation or legal action that will come due to COVID-19 would largely be based on the cause of action arising out of sudden stoppage or disturbance of various activities or transactions among a citizen in different kinds of or nature of relationships. In other words, the legal action or litigation which are pending before the court prior to the lockdown and the litigation that will come before the court post lockdown. See, two bifurcation is very important. Lockdown are non-comparable and cannot be adjudicated with the same approach as the court had prior to pre-lockdown period. I don't say that we have different principle of law to be made applicable to the dispute which comes to the court. But we should not forget that we should bear in mind the litigation which was pending prior to lockdown and the litigation that will come. Because the situation which has come into existence today, nobody can be blamed. No litigant can be blamed if he has any grievance and if he comes before the court. So in that situation and in that at that time, adjudication should have some human touch, and it is need of hour. It is not in the interest of society or nation to keep people on fighting mode through our adversarial justice delivery system. So while trying legal action post-lockdown period through adversarial legal system, we need to evolve proper mechanism to resolve disputes on account of COVID-19 through other effective but acceptable and satisfactory mechanism. Now, what could be the mechanism? I don't think this technological issue has any much relevancy to resolve the issue that will come before the court and the issue which are already pending before the court. Pre-lockdown period, we note that justice delivery system has not provided justice in speedy manner, and the additional burden of litigation post-lockdown period will further reduce speed of the justice delivery system. No need to give any facts and figures either on disposal of cases and or institution of cases before different courts. You are all well aware. So time has come to evolve and implement mechanism to find a solution of dispute and to restore peace and relationship in the society. This is very important because of this COVID-19 situation, there are a lot of disturbances, lot of breakup in the relationship between the parties, in the family, in the business, everywhere. So it is high time to change our mindset on the mindset of the lawyers and judges, and to come forward to heal the miseries of the citizens that they are suffering on account of COVID-19. The functionaries in charge of the administration of justice must motivate and impress upon the judges and lawyers at grassroots level to resolve the dispute through mediation, arbitration, and Lok Adalat. I also personally believe that this is crucial function, or rather crucial role on the part of the court, because the ADR mechanism and or Lok Adalat or conciliation process, which we are normally undertaking nowadays or prior to lockdown, is not on regular basis, but it is taken up at a periodical, at a different periods. For example, Lok Adalats are not a regular feature of all the courts. So time has come that we must evolve some mechanism to have this process on almost on day-to-day basis, so that incoming flow of the litigation can be dealt with in a
in a proper manner and by creating win-win situation between the parties, and that will definitely help us to restore the relationship amongst the parties. One more thing I would like to suggest here, and that rather it is also a function and role of the courts, that the disputes which are pending and the dispute which comes before the court, either on civil or criminal side, or mostly on criminal side, the courts should also use the provisions of plea bargain and also the provisions of Probation of Offenders Act, so that, see, ultimate now, my personal opinion is that we should not keep the litigants on fighting mode. This COVID-19 is such a situation, natural calamities, that no one can be blamed for it, no party. So instead of adjudicating dispute through this adversarial justice delivery system, we must see that the parties come to the common platform and resolve the dispute at the earliest, and that can help us more. So here, proper planning and on administrative side of High Court, and also planning on the part of the judges could help us to maintain the trust of citizens, respect to justice delivery system, and to bear the additional load. So technology is, Mr. Surana, technology is not an issue or is a question. It definitely helps now during this time to conduct the cases. And as said by my old brother judges, that we are not able to take up all the matters which are pending. And also most urgent matter, means urgent matter are also not taken up, ordinary matters are not taken up. See, it is a subjective satisfaction of a litigant. For you, it may be a most urgent matter. For me, it is an ordinary matter. So definitely it creates some grievance. So all matters are equally important that each court is bound to take up. And so technology as existing today is not sufficient to deal with this situation. So this is how we can find out some solution. That is my personal feeling, Mr. Suma. So I think it is a very practical, coming from a honorable judge, that you should explore the alternative dispute resolution and the Lok Adalat. That is the need of the hour, whether it be mediation or Lok Adalat or arbitration. So that is a very good takeaway from your message, and I hope the participant will also think over it, and then the pendency and litigation can be reduced. Yeah. Thank you. Thanks a lot, sir. As our next speaker, we have Honorable Justice Gautam Chaudia Sahab, Judge Chhattisgarh High Court, Bilaspur. Justice Chaudia Sahab joined judiciary in the year 1987, and he was elevated as High Court Judge in the year 2018. He has a rich experience of working on all sides of law, criminal, family law, civil law, and now the writ jurisdiction and all fundamental right matters. So I welcome you, sir. Sir, you have seen lower judiciary, subordinate judiciary from close quarter, और वहाँ की क्या problems हैं और क्या-क्या issues हैं. सर, अभी जो ये COVID-19 से और ज़्यादा issues हो गए हैं कि क्रिमिनल ट्रायल एविडेंसेस, एग्जिबिट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सारा वर्चुअल मोड में नहीं हो सकती है सर. और ये मतलब सिर्फ एक परसेप्शन और मीडिया में है कि हाँ कोर्ट्स फंक्शन होनी चाहिए, मगर किस तरीके हमें जब जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग एंड अदर नॉर्म्स, उनको भी फॉलो करना है एंड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को भी रखना है. तो सर आपका इस पे क्या थॉट्स हैं कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तो सर ऑनलाइन हियरिंग से दे हैव स्टार्टेड, बट जो मेन क्रक्स ऑफ द वर्क इज देयर, तो वहां किस तरीके से सर अडैप्टेशन होना चाहिए? Sir, I request you please unmute yourself. Yeah. You hear me? जी सर. विनीत साहब, भंडारी साहब, शाह साहब, आप तातेर साहब, सबको जय जिनेंद्र, ओम अहम. सभी पार्टिसिपेंट्स को जय जिनेंद्र, ओम अहम. मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जुडिशरी काम नहीं कर रही है, ये परसेप्शन लोगों का गलत है.
जब पूरा लॉकडाउन हो देश में, कोई मूवमेंट नहीं हो, कोई आना जाना संभव ना हो, तो न्यायालय भी उसी का एक पार्ट है। लिटिगेट, एडवोकेट्स, प्रोसिक्यूशन एजेंसी, पुलिस एजेंसी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन सब के बिना न्यायालय का काम नहीं चल सकता। और ये पार्ट जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को प्रमोट या हम एक्टिव नहीं कर सकते। तो एक बड़ी मजबूरी जुडिशरी के साथ ये रही है कि इन सब का नहीं मिलना ही काम को धीमी गति में लाने के लिए मजबूरी हमारी रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जुडिशरी प्रोएक्टिव पूरी इंडिया में रही है। आपने अगर समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में बहुत सी चीजें देखी हो। मैं छत्तीसगढ़ की ही बात करता हूँ। हमारे यहाँ जेल में करीब 15,000 16,000 बंदी हैं। करीब 5,443 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को हमने इंटरिम बेल पे रिलीज किया। तो 5,443 प्रिजनर्स को इंटरिम बेल पे रिलीव करके उनको रिलीफ देना, उनके ट्रायल को रुक जाने के कारण उनको इमीडिएट उनको रिलीफ देना, ये प्रोएक्टिवनेस ही है। इसी तरह वर्चुअल कोर्ट्स के साथ साथ फिजिकल कोर्ट्स भी हमने अवेलेबल कराई छत्तीसगढ़ में। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने सू मोटो एक कॉग्निजेंस लिया पीआईएल का। जस्ट लॉकडाउन 25 मार्च को हुआ और 9 अप्रैल को उन्होंने पीआईएल रजिस्टर कर ली सू मोटो। और पूरे डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेशंस को, डॉक्टर्स को, चाहे वो पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट करने से संबंधित हो, चाहे सैनिटाइजेशन से संबंधित हो, चाहे जो कुछ ऐसे लोग जो देश में फैल गए उनको सर्च आउट करके, उनको फाइंड आउट करके उनको क्वारंटाइन करने के लिए हो, डिफरेंट ऑर्डर्स पास बाय द हाई कोर्ट छत्तीसगढ़। अब रहा सवाल कि ट्रायल कोर्ट में हियरिंग कैसे संभव हो, तो वर्चुअल कोर्ट से बेल मैटर्स हैं, अर्जेंट मैटर, सबकी हियरिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट में भी फिजिकल और वर्चुअल कोर्ट दोनों कोर्ट ओपन है। 8 जून से हम पूरी कोर्ट्स ओपन कर रहे हैं, जो वर्चुअल भी है और फिजिकल भी है। जो अर्जेंट मैटर, बेल्स मैटर्स वगैरह हैं वो वर्चुअल कोर्ट से होंगे। हम 5 ईयर ओल्ड जो केसेस हैं उसको फोकस करके एडवोकेट से कॉपरेशन लेके, बार और बेंच से कॉपरेशन लेके हम 5 ईयर ओल्ड केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए फिजिकल कोर्ट्स, सारी बेंचेस काम कर रही हैं। तो कोर्टें काम नहीं कर रही हैं ऐसा नहीं है। हाँ, परिस्थितियां ऐसी है जिसमें पूरी तरह से काम करना संभव नहीं है। प्रिजनर्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हियरिंग हो रही है। रिमांड्स वगैरह जो रिमांड ग्रांट्स करने के काम है वह वर्चुअल हियरिंग से हो रहे हैं। बेल के मैटर्स वर्चुअल हियरिंग से हो रहे हैं। और जो ओल्ड केसेस है उसके लिए हम लोग फिजिकल हियरिंग कर रहे हैं। पूरी बेंचेस बैठ रही है और काम कर रही हैं। अब विदाउट एडवोकेट्स और विदाउट लिटिगेंट लोअर कोर्ट में काम संभव नहीं है। जो देश की हालत है वो आप सब अवगत है अच्छी तरह से, और उसी के द्वारा ही हम काम कर पा रहे हैं। वर्चुअल हियरिंग सब्स्टिट्यूट नहीं है फिजिकल हियरिंग का, ये बहुत सही बात है। लेकिन ये समय हमें एक लेसन दे रहा है कि हमें आने वाले समय के लिए, वर्चुअल हियरिंग के लिए लंबे समय तक के लिए तैयार हो जाना चाहिए, अदरवाइज हम बहुत पीछे रह जाएंगे। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि अब समय आ गया जब एडवोकेट्स को, जजेस को, लिटिगेंट्स को इस बात को समझना होगा कि लंबी बहस, लॉन्ग अननेसेसरी प्लीडिंग, इन सब को रोके जाने का समय आ चुका है। मैंने सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ा है। अगर सिविल प्रोसीजर कोड के अपेंडिक्स में देखेंगे तो स्पेसिफिक रिलीफ के मनी केसेस वगैरह में 1.5 या 2 पेज की प्लीडिंग होती है। ओनली 2 पेज या 3 पेज प्लीडिंग होती है। नॉर्मली एडवोकेट्स अपनी प्लीडिंग 10-10 पेज, 12-12 पेज में करता है, जो पढ़ने में हमें बहुत समय देना पड़ता है। आर्गुमेंट्स फैक्ट से लेके कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे इतने लंबे कर दिए जाते हैं कि घंटों उस पे जाते हैं। अगर इसको समराइज करके अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है। कोविड-19 की परिस्थितियों में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सकेंगे, जजेस भी, और लोगों को शीघ्रता से न्याय देने में हमें सुविधा होगी। रहा सवाल कि इन सब चीजों को लागू किया जाए, तो मैं सोचता हूं कि एडवोकेट्स के कोऑपरेशन के बिना, बार और बेंच के कंटिन्यू सिटिंग्स हो, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझें और इसको पॉइंट आउट करें, तो मैं सोचता हूँ ज्यादा बेहतर ढंग से हम अपने काम को व्यवस्थित कर पाएंगे। और अब एक चीज मान लेना चाहिए कि वर्चुअल हियरिंग इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जुडिशियल एंड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इट्स ए वेरी हेल्पफुल फॉर द ऑल ऑफ दस। एक विटनेस को कोर्ट में अपीयर होना है, एक दिल्ली में बैठे हुए एक एडवोकेट को आर्गुमेंट करना है, किसी गांव के विटनेस को एग्जामिन करना है, हमको वर्चुअल कोर्ट को एक्सेप्ट करने की मानसिकता बना लेनी चाहिए। हमारे माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। अगर इसको हम चेंज नहीं करते हैं तो हम बहुत पीछे रहेंगे। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज हुआ करते थे, लेट श्री एस बी सिन्हा साहब। उन्होंने कहा था, जब हम सर्विस में 1987 में आए
तब भी ये कहा जाता था कि लॉन्ग पेंडेंस इन जुडिशरी, जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड, जस्टिस इज हरिन, जस्टिस इज बरीड। और आज भी 30 साल 32 साल मुझे सर्विस करने के बाद भी यह सुनने को मिल रहा है कि हम उसी स्टेज पे खड़े हैं। और जस्टिस सिन्हा साहब कहा करते थे कि हम अगर 75,000 जजेस भी अपॉइंट कर दें तो इस बैकलॉग को खत्म करने में कम से कम 30 साल अभी और लगेंगे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले इंस्टीट्यूशंस में जितने केसेस हमारे बढ़ रहे हैं और जो लॉन्ग पेंडेंसीज खत्म करने में 75,000 जज भी पूरा नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब है हमको बाइफरकेट मोड को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। चाहे एडीआर के रूप में जो सीपीसी में अमेंडमेंट हुए हैं, माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है सोसाइटी का, बड़े दुर्भाग्य की बात है। लोगों को लगता है कि कोर्ट ही एक सब्स्टिट्यूट है जहां पे जाके न्याय मिल सकता है। क्या मीडिएशन से न्याय नहीं मिल रहा है, लोक अदालत के माध्यम से नहीं मिल रहा है, आर्बिट्रेशन के माध्यम से नहीं मिल रहा है, या इंस्टीट्यूशनल सेटलमेंट के माध्यम से नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। लोगों को रियल जस्टिस अगर प्राप्त करना है तो जो एडीआर मोड है उसको मेंटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सोसाइटी को उसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है। आई होप कि लोग इसको समझेंगे और बाइफरकेट, ये जो बाईपास वे बनाए गए हैं उसको एक्सेप्ट करके जुडिशियल बर्डन को भी कम करेंगे और स्पीडी जस्टिस के टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर हरीश, थैंक यू। जी सर। सर आई थिंक ये एक जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए एक आई ओपनर है कि सिटिंग ऑनरेबल जजेस ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के बारे में इतना पॉजिटिव है और मीडिएशन और कंसिलिएशन के लिए, लोक अदालत के लिए इतने इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा परसेप्शन चेंजर है जिससे कि सभी को बेनिफिट होगा। थैंक यू सर। सर एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि सर आपके पास एक ऑप्शन था, बिकॉज सर यहाँ कुछ हमारे अभी काफी लॉ स्टूडेंट्स भी हैं, यू हैड ए ऑप्शन टू ईदर कीप योरसेल्फ इन एडवोकेसी ओनली और टू जॉइन जजशिप। तो आपने सर जुडिशरी ज्वाइन की, तो उसके पीछे सर आपका क्या इंस्पिरेशन था जुडिशरी ज्वाइन करने के लिए? मनीष भंडारी साहब मेरे ब्रदर ने बहुत अच्छा कहा कि कुछ डेस्टिनी होती है जो ले जाती है, और मैं सोचता हूँ जिसको जो काम अच्छा लगे, एडवोकेसी हो, मैंने कभी एक वेबिनार था उसमें भी यही बात कही थी कि जो काम दिल को अच्छा लगे जरूर करना चाहिए। अगर आपके दिल को लगता है कि आप इस चेयर के लिए सुटेबल हैं, न्यायाधीश के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सोशल लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होता है। मैं अपने अगर 32-33 साल के न्यायिक जीवन को देखता हूं तो मुझे पूरा संतोष है कि मैंने सही राह चुनी है, और इस न्यायाधीश के मार्ग पर आप इतने लोगों की राहत दे सकते हैं। आपकी सोच, आपके काम करने का तरीका और एडवोकेट से मिलने वाला फीडबैक जो हमारे आर्गुमेंट के थ्रू आते हैं, हमारे विजन को इतना चेंज करते हैं कि जुडिशरी इज ए टूल ऑफ ए सोशल चेंज ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। जुडिशरी एक बहुत बड़ा टूल है। हम देश में पूरे एक परिवर्तन लाने के जो मार्ग खोलते हैं, जुडिशरी से भी एक रास्ता खुलता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि देश में कुछ अच्छी चीजें हो, आमूलचूल परिवर्तन हो और लोगों का विश्वास है इस पे, लोग आना चाहते हैं, लोगों के लिए बस एक है कि यहाँ पे चार्म नहीं है जितना आपको एडवोकेसी में मिल सकता है। तो चार्म इज नो मैटर ना, चार्म इज नो मैटर। हमारे यहाँ तो हम जब सर्विस में आए थे ऐसे कहा जाता था और सिखाया जाता था कि संत की तरह रहिए और घोड़े की तरह काम करते रहिए। तो अगर ये मानसिकता आपकी है कि संत की तरह रह सकते हैं और घोड़े की तरह काम कर सकते हैं, अब तो सुविधाएं बहुत बेहतर होगी। तातेर साहब ने जैसे ही बताया कि आजकल तो हमारी ये सुविधाएं इतनी अच्छी थी, जब हमने ज्वाइन किया था तो 1820 रुपए बेसिक था इसका, आज तो लाखों में सैलरी मिलती है, सारी सुविधाएं हैं, व्हीकल्स हैं, पेट्रोल अलाउंसेस हैं, यानी अदर आपकी लाइफ बहुत आराम से गुजर सकती है अगर आपके और कोई व्यसन ना हो तो। अगर आपने व्यसन पाल रखे हैं तो बड़ी कठिनाई होगी, लेकिन अगर आनंद से जीना चाहते हैं तो इससे अच्छी सर्विसेज नहीं, कोई इंटरफेयर नहीं है, आप स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, आप अपने कॉन्शियस से काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ काम करते हैं। इससे बेटर फील्ड मुझे नहीं लगा मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आई कह सकता हूँ। और युवा साथियों से ही कहना चाहता हूँ, पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, जरूरतें पूरी हो जाती हैं। आपको अगर इस कुर्सी पे आके कुछ समाज के लिए कुछ करना है, कुछ देश के लिए करना है, तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। आप आइए, स्वागत है आपका। जुडिशरी इज द बेस्ट फील्ड। Thank you. Thanks a lot, sir. Before starting the Q&A round, I'll request JTF President Shri J.V. Jain Sahab to give his remarks and also introduce all dignitaries and panelists about the JTF ADR Center. Shri J.V. Jain Sahab. जय जिनेंद्र। मैं आज हमारे आज के स्पीकर जस्टिस डॉक्टर विनीत जी कोठारी, जस्टिस श्री मनीष जी भंडारी, जस्टिस
श्री के ताटेट जी, जस्टिस श्री सतीश जी वोरा, जस्टिस गौतम जी चौड़िया का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट इन कोविड-19 एंड पोस्ट कोविड टाइम के बारे में मार्गदर्शन दिया। हमारे जीतो के चेयरमैन श्री प्रदीप जी राठौर, जीतो के प्रेसिडेंट श्री गणपत जी चौधरी और जेटीएफ चेयरमैन श्री पृथ्वीराज जी कोठारी ने इस वेबिनार में आकर हमें प्रोत्साहित किया, उसका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। जीतो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन जो जेटीएफ के नाम से जाना जाता है, जेटीएफ जीतो का ही एक अंग है जो एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सभी को अवगत करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जेटीएफ अब जुडिशरी क्षेत्र में भी शुरुआत करने जा रहा है। जेटीएफ अब एडीआर सेंटर खोलने जा रहा है। एडीआर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। जेटीएफ एडीआर सेंटर प्रचलित कानूनों के अनुसार न्यायालयों के बाहर विवादों को सुलझाने के लिए एक मंच का प्रदान करेगा। आज की न्याय व्यवस्था लंबी और महंगी होती जा रही है, इसलिए एडीआर जैसे साधनों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की भी इसको बढ़ावा दे रही है। आर्बिट्रेशन की कार्रवाई एक्ट 1996 के तहत चलाई। मीडिएशन की शुरुआत हम वैवाहिक और पारिवारिक विवादों को सुलझाएंगे और बाद में व्यक्तियों और कंपनियों के व्यावसायिक विवादों का समाधान करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के तहत ट्रेंड और पेशेवर मध्यस्थ जेटीएफ एडीआर सेंटर में कार्यरत रहेंगे। इसके अलावा पूर्व न्यायाधीश भी मध्यस्थता करेंगे। लॉकडाउन के कारण हम पहले चरण में ऑनलाइन मध्यस्थता शुरुआत करेंगे। परिस्थिति सामान्य होने पर हम ऑफलाइन केंद्र की स्थापना करेंगे। मैं आप सभी से अपील करता हूं, इस कार्य में हमें मार्गदर्शन देवे और सहयोग देवे। Thank you, Javi Jain sir. Now, Sridhar, Inder, we can take few questions. So, if somebody has raised hand, I think Kishore Khavia ji wants to ask a question. So, Inder, if you can unmute, and I'll request all participants to be specific with your question. And once again, we have to keep our discussion general. So just this academic exercise, so just be specific in your question. Kishore Khabia ji. Jai Jinendra to all our respected judges and Surana ji and all viewers. My question is, how after 70 years of independence, we are not come out, how we have to handle criminalization of politics. Every time, different times, these political people, they talk in Rajya Sabha and Lok Sabha, and judges also talk in this Supreme Court and High Court, but nothing is come out. I just want to, anyone panelist, just highlight on this thing. Thank you. Khabia ji, since our topic is related to role and functioning of COVID-19, so I think it won't be appropriate at this forum at this time to answer this question. So we can take up this question some other time. Thank you. Ji. Hello. 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 Good evening. Ji, ma'am, please ask your question. Yeah, I'm Dr. Sunita Abhay, Professor of Law. So I just wanted to know how well equipped are we to enable access to justice, considering the fact of illiteracy, poverty, and technically illiterate population in our country. And what are the steps that the judiciary has taken in this regard? Thank you. Justice Vineet Kothari sir would like to answer this.
or for that matter, any of the honorable judges? No, I can venture to answer in my own Ji, way. sir. Access to justice is a right which every litigant has, and you are very right that the poor litigants who cannot access through these technological means, which in particular in COVID times and post-COVID times also, when we are talking of the technology to become a new normal, will not have a very good and effective access to justice, and they will have to depend upon the tech-savvy lawyers. And therefore, this is already a question raising in the bar. The Bar Council also has recently made representations that by this technology thing, only a very elite class of people or lawyers are earning and making money in this legal profession, and common man does not have access to justice. The answer to your question would lie in going back to the law education system. Unless we can spread this education and how the access to justice can be made effective in bad times when the courts are not, the physical hearings of the courts because of various other reasons of infrastructure and pendency and long pendency and priority of cases not available, how they can access justice. The other answer, in my understanding, lies in ADR system. All of us have talked about ADR system. उसमें मैं एक ऑफशूट बात जरूर अभी इस समरी के कमेंट के तौर पर भी कहना चाहूंगा. दो बातें. एक तो कोरोना ने हमको बहुत बड़ा सबक सिखाया लाइफ स्टाइल के बारे में. हमको ये मानना पड़ेगा कि हमारी लाइफ स्टाइल पहले जैसी अब आने वाले समय में नहीं रह सकती. जब आप पहले कोई दो पार्टियों में झगड़ा होता था तो एक पक्ष कहता था गुस्से में आके तुझे कोर्ट में देख लूंगा. उस विचारधारा को कोविड के सबक से हमें बदलना चाहिए और अब स्लोगन ये होना चाहिए, आओ भाई बैठ के बात टेबल पे करना. ये मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा वाला सिस्टम अब चेंज होना पड़ेगा. टेबल पे जितनी बात सुधर जाएगी, जितनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा. दूसरा बड़ा जो लिटिगेंट सिस्टम में है वो गवर्नमेंट है. 70% ऑफ लिटिगेशन इज आइदर अगेंस्ट द गवर्नमेंट और बाय द गवर्नमेंट. हम जुडिशरी में ये अच्छे से जानते हैं. गवर्नमेंट के एक्शन और इनएक्शन की वजह से जो लिटिगेशन होता है कोर्ट्स में, उसको रिड्यूस खुद गवर्नमेंट ही कर सकती है. तो बहुत सारे फ्रंट्स में जब हम लड़ेंगे तब एक्सेस टू जस्टिस का एक मीनिंगफुल पर्पस हमारे सामने आएगा. ये सिर्फ पुअर या टैक्स से भी नहीं होने की वजह से एक्सेस टू जस्टिस नहीं है. एक्सेस टू जस्टिस सही मायने में तभी मिल पाएगा जब सब फ्रंट्स पे इसकी तैयारी होगी, सब फ्रंट्स पे इसका समाधान खोजा जाएगा. मेरे हिसाब से दो सॉल्यूशन बहुत जरूरी है. एजुकेशन, लॉ एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट को अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन करके लिटिगेशन घटाना पड़ेगा, और आपस में प्राइवेट डिस्प्यूट्स में भी लोगों को टेबल पे बैठ के एडीआर सिस्टम में प्री लिटिगेशन मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, एडीआर सिस्टम में समाधान ढूंढना पड़ेगा. नहीं तो कोर्ट में आप सिर्फ क्यू ज्वाइन करोगे. क्यू बहुत लंबी ऑलरेडी. तो ये बहुत, इस पे और विचार होना चाहिए. इस पे शायद और सारे वेबिनार्स और सेमिनार्स होने चाहिए जिसमें हम ये विचार करें कि कहाँ क्या क्या रिफॉर्म करके जुडिशरी में बर्डन को कम करके हम रियल मीनिंग एक्सेस टू जस्टिस सबको दे सके एज ए डिस्पेंसेशन इन द स्टेट. ये मेरा विचार है जो आप ध्यान में रखें. जी. इंदर, कैन यू टेक नेक्स्ट क्वेश्चन? Manoj ji, you are on. Yes, sir. I think Dheeraj Kothari is raising his hand. जी सर. Dheeraj Kothari ji. जी. Inder, we can take Dheeraj Kothari ji. Unmute, sir. Yeah, yes. I am. Thank you, sir. Thank you very much. Yes. मेरा क्वेश्चन है जस्टिस तातेर साहब से. सर, आफ्टर कोविड 3 महीने में बहुत केसेस आ रहे हैं रिगार्डिंग वेजेस, रिगार्डिंग सैलरी, regarding retrenchment of the people, because अगर आप कमाओगे नहीं तो आप रखोगे नहीं. तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम उसको कैसे डील करें. नंबर 1. नंबर 2, केसेस तो आपके पास ही आएंगे, तो आप या तो गाइडलाइन इशू करवा दे गवर्नमेंट को बोलकर, या आप गवर्नमेंट को बोलकर एक सिस्टम अडॉप्ट करवा दे. भाई जो भी देना है, चाहे वेजेस है, चाहे रेंट है, चाहे सैलरीज है, एक प्री डिटरमिन कर दे फिक्स कि भाई ये आपको इतना मिनिमम देना पड़ेगा, एंड बाय द ऑप्शन इज विथ यू. आप दोनों मिलकर सेटल कर लीजिए. Otherwise, it's very difficult because in our market, I am from the textile community.
और यहाँ पे तो समझिए हमारे सी वार्ड है, बॉम्बे में सी वार्ड में 15,000 डीलर्स हैं, करीब 5 आदमी एवरेज पकड़े तो करीब 1 लाख वर्कर काम करते हैं, रोज का डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा. सो वी वांट टू गाइडेंस फ्रॉम द जस्टिस तातेड़ साहब, प्लीज सर. धीरज कोठारी जी, या ये तो बात सही है आपने जो बोला है कि अबाउट दिस वेजेस, ये तो डिस्प्यूट आना ही है. पर पहले सबसे पहले आपको एक बात बता दूं मैं कि ये इश्यू अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. और दूसरी बात ये है कि बिजनेसमैन सोचता है मैं वेजेस सामने वाले को क्यों दूं, और सामने वाला सोचता है मैं मेरे वेजेस क्यों छूट, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ काम पे ऊपर, वो काम पे नहीं बुलावे. आज आप देख लीजिए, अगर मेड सर्वेंट है, मेड सर्वेंट से आई एम रेडी टू कम टू वर्क एट योर प्लेस, आप क्या बोलोगे उनको? मत आइए. अब ठीक है, क्वेश्चन इज दैट विच पर्टिकुलर सेक्टर कैन बी एग्जम्प्टेड और विच सेक्टर कैन नॉट बी एग्जम्प्टेड, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड ऑन केस टू केस बेसिस. ऐसा जनरल जब आप सोच रहे हो कि ऐसा कोई जनरल ऑर्डर पास हो जावे या कुछ ऐसे गाइडलाइन हो जावे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड दैट वे. Therefore, it depends on matter to matter how to deal with that. जी, इंदर, विकी जी Thank you, प्लीज. sir. yeah, Vicky Oswal ji, please ask your question. Jai Jinendra ji, I would like to ask my question to Justice Tathead sir. I'm a real estate developer and I think सबसे ज़्यादा disputes अभी COVID के बाद real estate के आएंगे. So I want to know कि ये rentals, bank और possession के बहुत issues आएंगे, तो how to tackle before they go to the court. मिस्टर विक्की, ये तो बात सही है आपका, पर अभी फिलहाल देखे जाओ तो ऐसे भी गवर्नमेंट ने भी बोला है कि रेंट फॉर पर्टिकुलर पीरियड नॉट टू चार्ज, पर चार्ज यानी अभी रिकवर मत करिए. पर क्वेश्चन इज अगेन सेम थिंग एज मिस्टर धीरज कोठारी जी आस्क्ड. क्वेश्चन इज दैट विच टाइप ऑफ रेंट premises you are asking. Just take example, if some premises is rented to the bank, which is functioning as on today, can they say that please exempt us? Suppose this premises is given to ATM, ATMs are working, they are also doing. Question will come in respect of some commercial premises where hotels were not allowed. ऐसे इसलिए after all this depends upon each category of matter, and that to be decided on each and every basis. So general we can't say that. Sumer Kalaji, Yes. and after that Gaurang Zaveri. Jai Jiren, to all respected Judge Saab and Jito fraternity. Sir, both we have enriched too much regarding the virtual proceedings in judicial proceedings. We are acting as a quasi-judicial authority. Most of the administrative officers are acting as a quasi-judicial authorities. In quasi-judicial, now we are experiencing some different scenario in the COVID period, sir. In our appeals, we have started virtual hearing, and it is possible in taxation because the evidence is very simple. They can upload the documents and we can verify from our own side. The number of proceeding has been reduced. So we have very different experience during this COVID period. We have grouped the cases under one head, under one category. Dispute is the same. Sir, my question is that whether we can waive the signing physically in the proceeding sheet by the authority, and second is communication by mail or communication by telephone to the advocate, whether it can be a very effective as far as dealers are concerned, because court proceedings are different and our quasi-judicial proceedings are different. Thank you, sir. Tathead sir, करेंगे. Justice Tathead साहब, Justice Vineet Kothari साहब, or Justice Manish Bhandari साहब is there. I would like to just brief one comment and Justice Tathead can also give. As far as authorities signing the orders or proceedings is concerned, in my opinion, it will depend upon the validity of the e-signatures, and for that, their own departmental guidelines and recording of the e-signatures must be recognized. It should be in your data bank, and that should be permitted by your department, then only you can do. As far as service of summons and information is concerned,
Evidence Act, as you know, now recognizes the communication of summons even by WhatsApp and emails also. So your queries to the SSCs, your passing on the proceedings to the SSC through electronic mode is a valid mode of service, and that can be taken on record by them. So that should be permitted. There is no difficulty. As far as your signing is concerned, that will depend upon your departmental guidelines and your recording of e-signatures in your data bank. This is my understanding. Sir, two short questions. Some litigants who would want matters to be delayed, present situation will be of assistance to them. How would we as advocates overcome this difficulty, as circulations would not be very easy now? And second question, junior advocates would possibly face a survival crisis if matters don't get listed. So if this panel can enable us to boost our morale, that will be a good take home from here. तातेड़ साहब फरमाइए। ये तो सवाल इन्होंने पूछा करेक्ट है कि आज to get a circulation is very difficult because circulation in here we are asking giving only for most urgent matters. पर इन्होंने एक बात सोचना चाहिए कि ये सिचुएशन ऐसी है कि पूरे कोर्स चालू करना फिजिकल में इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पहले अपने को अपनी हेल्थ की केयर करना है, फिर बाद में प्रोफेशन आ जाएगा, सवाल नहीं आता. Really, if it is urgent matter, you are getting circulations, courts are working, they are passing orders on several matters. अब second question he has asked about the junior advocates. ये तो बात सही है कि जब वर्क नहीं हुए तो get a payment is also very difficult for them. इसके लिए solution ये है कि Bar Council of Maharashtra as well as Bar Association also made some arrangement to give some assistance to the junior advocates, and they are paying also. Because I seen that in last ADM matter, in ADM committee, where we are called other bar associations also, they also made a given statement that they are paying some assistance to the juniors also. तो जब तक ये regular course में court working नहीं होता है, तब तक तो ये very difficult to say what he is telling that way कि भाई junior का क्या होना है. पर इसके बदले ये भी है कि that they can do consulting on arbitration के matters जो है, that they can start on video conferencing, that way they can do other things. पर मेरा इसमें एक सुझाव और है तातेड़ साहब कि अभी ये हाई टाइम है कि लेजिस्लेचर को जूनियर एडवोकेट्स को एक रीजनेबल स्टाइपेंड देने का कानून बनाया जाए. जिस तरह कोविड में और भी कानून और रेगुलेशंस जल्दी में बने हैं, एडवोकेट्स की समस्याओं को भी मीट काफी हद तक किया. हालांकि बार काउंसिल और बार एसोसिएशन ने और सीनियर एडवोकेट्स ने डोनेशन से कुछ मदद करने का प्रयास किया है, पर कानून बना करके जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के आर्टिकल्स को ट्रेनीज को एक स्टाइपेंड दिया जाता है, वैसा जूनियर एडवोकेट्स के लिए भी अवश्य प्रबंध किया जाना चाहिए. ये समस्या बहुत गंभीर है और इसमें बहुत जूनियर एडवोकेट्स का पेन हम लोगों ने महसूस किया उनकी बातों से, और ये बहुत सही सवाल भैया ने उठाया है. तो इसका लेजिस्लेचर भी कुछ अवश्य सोचे. ये मेरा Jai Jinendra, can I'm Manoj Arsha. My question is related to COVID only. Most of the importers, most of the association have referred the circular being issued by the concerned department, Government of India, like advisories, like circular, like orders from the shipping industry, shipping ministry, as well as the commerce ministry and finance ministry. But in general, the concerned department, i.e. shipping lines, i.e. container freight stations, they are not obeying these orders, circular. One petition is there in the Supreme Court also, several associations. Because ultimately in Hindi, I will say it is Kanya ki ked ke upar rahega. Whatever the importers are there, they will increase the rate according to the demurrage and the rent charges of the place that CFS has given will be on the burden on the industries. So industry is on the killing stage. So what is the way outside? As all the honorable judges have told that amicably should be settled, but this the agencies, they are charging enormously, and people are paying 40 lakhs, 50 lakhs, 1 crore, because otherwise if it will increase compounding, so they release by paying. So this is the crucial
as far as each and every industry is concerned. So my humble request related to this, can you answer? आज आपने जो बताया है जी कि भाई सर्कुलर फॉलो नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर एजेंसीज, बेस पे दे कैन मूव टू द हाई कोर्ट्स ओनली, बिकॉज इन सच ए सिचुएशन इफ particular authorities are not ready to follow the circular issued by their own departments or by the government, in such type of cases there is urgency and they can move to the high court. Sir, Inder, we can take one last question because we have already exceeded 5 minutes, so we can take last question. Question is that tomorrow onwards our lower judiciary will start working in 2 shifts, first shift and second shift. As Honorable Justice K.K. Tater Sahib has rightly discussed in his lecture, in his speech, that there will be more important question before lower judiciary is, which is the most urgent matter. Because in eyes of advocate, there will be issuing summons will be the most urgent matter. But in some opposite advocate, that will not be the most urgent matter. So can you give some tips to handle such kind of situation? My question is to Honorable Justice Tater Sahib. See, देखिए, in Maharashtra, from tomorrow in lower judiciary they are started working in shift wise. Only question is that which matter to be taken. They should take the matter where there is no question of attending the clients, there is no question of taking evidence. These things are there. Issuing summons is a question that can be done by the office only. तो इसलिए सवाल आता है कि मैटर कौन से इम्पोर्टेंट है. तो अभी फिलहाल तो सवाल ये है कि इस सिचुएशन के अंदर कम से कम लोग जुडिशियल कोर्ट में आवे और काम भी चले. अब ऐसे कौन से काम चलेंगे जो है सिविल अपील्स है जिसके अंदर प्लीडिंग खत्म हो चुके हैं, उसमें कोई अफिडेविट और कोई एविडेंस लेने की जरूरत नहीं है, वो हो सकते हैं. क्रिमिनल अपील्स है जहाँ की एविडेंस लेने की जरूरत नहीं है और जहाँ पे एविडेंस पूरे खत्म हो चुका है, मैटर्स आर केप्ट ओनली फॉर आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे मैटर प्रायोरिटी बेसिस पे लेना है, ये डिसाइड होगा. और बाकी बेल रिमांड ये तो मैटर रहेंगे ही. अब जैसे इन्होंने कहा है कि समन्स इश्यू करना है, समन्स इश्यू करना ये कोर्ट प्रोसेस है. और सवाल ये आता है कि इस सिचुएशन के अभी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए भी अभी रिस्ट्रिक्शंस है, तो समन्स इश्यू किए तो भी वो सर्व कैसे हो गए. For that purpose, you have to wait for some time. Thank you, sir. Thanks a lot. So I'll take this opportunity to thank all our esteemed honorable judges, Honorable Justice Vineet Kothari Sahab, Honorable Justice Manish Bhandari Sahab, Honorable Justice K.K. Tater Sahab, Honorable Justice S.H. Vora Sahab, Honorable Justice Gautam Choudhary ji, our Dito Apex Chairman Pradeep Rathod ji, Apex President Ganpat Chaudhary ji, JTF Chairman Prithviraj Kothari ji, and JTF President JV Jain Sahab, and all participants who on a Sunday evening have joined. Almost 300 joined on Zoom and a very good number on Facebook also. So I'm thankful to all participants. And I think, sir. अपने प्रफुल्ल शाह है from Bombay, from Advocate Association. What do you want to say about the Advocate Association, how they are working? Bilkul. If you can unmute Advocate Prafull Shah. Sir, you Prafull ji. Unmute yourself. Thank you. Hello. Ji. Can you hear me? Yes, yes. As far as High Court Association is concerned, today High Court Association and bench in coordination, they are trying their best for disposal of the urgent matter, extreme urgent matters. Now we have heard Justice Tater ji, Justice Kothari ji, and now the situation is such that ultimately via media is necessary, but the fact is always we have to consider that situation is very difficult. Justice Tater has explained the situation, and in such a bad situation, judiciary is trying best to give the justice.
Ji. Thank you, Praful ji. Thank you. So I once again thanks all the participants, and there are lot many takeaways, and the biggest I think would be that all the sitting honorable judges have said about ADR, alternative dispute resolution, that we should explore mediation and other settlement mechanism. Arbitration can also be there, and lok adalat. So that's a great takeaway. And second, the adaptability to technology. And since COVID is the new normal, so technology and virtual hearings, we should also adapt to that. So once again, I thank all our esteemed speakers and all participants that they spared the Sunday evening with us. And thanks a lot. Thank you. Good evening. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Thank you.